Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great. Hope all of you are hale and hearty. On your screens you can see I am going to take up CBSE Class 10th Information Technology Subject Code 402's Unit 1 Digital Documentation Advanced Session 1 Create and Apply Styles in the Document Part 2. Okay, so in part 1 that I have already uploaded, we learned how we learned what is actually meant by styles. Okay, we learned about uh, the various advantages that styles offer to us when we are using them in our document. We also got an introduction to the 5 types of styles that are available in OpenOffice Writer. So in continuation to that video, now I am going to explain applying styles in OpenOffice Writer in this part 2. Just in case you have not watched part 1 as yet, please watch it before watching part 2. I'll provide the link in this video's description. Now, as far as part 2 is concerned, I already told you that we are going to learn how we can apply styles in OpenOffice Writer, and this application of this applying of styles can be done in 2 ways. We can use the styles and formatting window to apply styles, or we can also use fill format mode to apply styles. Now, if you can see in this figure, we have the styles and formatting window. Its image is there, and all 5 types of styles are there listed, from paragraph, character, frame, page, and list styles. They're all 5 types of styles available in OpenOffice Writer. So this styles and formatting window can be used to apply styles. Fine. And if you can see over here, the small bucket-like icon that can be called fill format mode. We can even use the fill format mode to apply styles. So the description of these 3 things, like new style from selection, update style, and load styles, will be taken up in part 3 of this session 1 explanation series. So without wasting any more time, I'll straight away take you to your CBSE study material. Again, I'll provide the link in the description for that, and I will start with applying styles topic from the study material, and then side by side I will also demonstrate it practically. So applying styles, this topic is available on page number 4 of your study material, and OpenOffice ORG provides several ways for you to select styles to apply. First one is using styles and formatting window, and on page 5 you will find fill format mode, using the fill format mode. So there are 2 ways you can apply styles to an OpenOffice document. Now the emphasis on this thing इस वाले सेशन में बेटा पार्ट 2 में मैं आपको जो स्टाइल्स हैं वो जो बिल्ट इन हमें अवेलेबल हैं, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन देम ओनली. Fine. In part 3, I will also explain how we can make our own styles, custom styles. So, जब custom styles सीखेंगे, then I will tell you how we can apply the custom styles in the same manner. Okay. So, for this video, I'm only going to deal with the styles that come built in with OpenOffice Writer application. Now, see, how do we? What is the styles and formatting window? I have already covered it up in part 1. Styles and formatting window is the window, it's the place from where we can control all operations related to styles. Fine. Now, I also told you in part 1, but still we will recall, we'll do it again, that how we can make this window visible on our screens. In our OpenOffice Writer document, how we can make this window visible. So there were 3 ways. First is to click on the styles and formatting icon located at the left hand end of the object bar. Object bar, I told you, is the formatting toolbar. Fine. This is one way. You have the icon of style and formatting icon, which is available at left hand end,
leftmost side of your formatting toolbar or the object bar, and you can click on that icon. The window will be visible on your screens. As far as menu bar is concerned, you can go to format menu in the menu bar and choose the option styles and formatting. So this you also have this option in format menu. From the keyboard, if you would like to invoke this styles and formatting window, you would like to bring it on your screens, you must press the function key F11. So you must remember these three ways of opening the styles and formatting window. So I'll quickly show it to you. Fine. At present it is open. So I'm going to close it and I'm going to again open it up and show it to all of you. So we have the same document styles underscore demo underscore 1.odt. मैं फिर रिवाइज करा रही हूँ आपको. ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन इज ODT. ठीक है. So we have this formatting toolbar, styles and formatting icon. क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा. Go to format menu, choose the styles and formatting option. क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा. And from the keyboard you must press the function key F11. This window is going to show on your screens. Fine. अब आप यहाँ पर डॉक कर सकते हो उसको स्टेबलाइज. अभी तो आप ये मूव कर पा रहे हो ड्रैग करके इसको किसी भी लोकेशन पर मूव कर पा रहे हो. सपोज यू वांट टू फिक्स इट एट अ लोकेशन. फाइन. सो यू जस्ट नीड टू ड्रैग इट स्लाइटली. Okay, just drag it slightly. If you can just make out, you are getting these 4 borders. Fine. जैसे ये 4 borders आए ड्रैग करते towards the right of your screen लेके जाइए, ड्रैग करिए. जैसे ये 4 borders आए रिलीज कर दीजिए माउस को. अब आपकी ये विंडो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो डॉक हो गई आपके स्क्रीन पर. ठीक है. इसे वापस मूव करना है, क्लोज करना है तो जस्ट प्रेस दिस स्लाइटली. फाइन. इसको प्रेस कीजिए, बाहर लेके आइए ड्रैग करके, क्लोज आइकन आ जाएगा, इसको क्लोज कर दीजिए. सो आई जस्ट वंस अगेन आई डॉक इट so that it remains in front of me and I will show you how we can apply styles using this styles and formatting window. Brief introduction to it was already given in part 1. So पहला काम हमारा हो गया styles apply करने के लिए. We have opened the styles and formatting window using any of the 3 methods that OpenOffice Writer provides. Now we know that we get a category of 5 categories of styles in OpenOffice Writer. Whenever you click on any of the category, you get a list of styles available in that category. Fine. So when you click on paragraph styles, you get all the paragraph styles. When you click on character styles, you get all the character styles. Same ways for frame styles, page styles and list styles. So whenever you will click any paragraph style category, you will get a list of all the styles available in that category. Fine. Towards the right, we have this icon which reads fill format mode. This icon reads, this button is known as the fill format mode. That is going to be the second method of applying styles. Then rightmost we have this new styles from selection button, but it has a drop down arrow next to it. When you click on this drop down arrow, you will get 3 more options: new style from selection, update style and load styles. So the use of these 3 options will become clear to you in part 3. Today I'm going to focus on these available styles and the fill format mode because that is the agenda of part 2. Fine. So अब styles को apply कैसे करना? I have the same sample document with me over here, and I'm going to just write, children. I'm simply going to write over here what I'll be taking up. So I'm going to write over here. So first method is you are the first method that I am taking to apply styles is using the styles and formatting window. Okay, using the styles and formatting window. So what you have to see, minor differences हैं. मैं आपको 2 तरह से styles apply करके दिखाऊंगी, paragraph and character. So if you can see, this is a paragraph, है ना? If I'll just write, this is paragraph 1. Okay,
So I'll just show you how I'll apply styles to paragraph 1 followed by another paragraph. I'll show you, this is my second paragraph, so I'll show how we can apply paragraph style first. Fine. So when you have to apply style to a paragraph, first step is you should have the styles and formatting window open in front of you. Then what you will do, you will click anywhere, you will place your mouse pointer anywhere, click anywhere inside the paragraph. Say, suppose I've clicked over here. Okay, go to the paragraph styles category. Go to paragraph styles category. Fine, you have to select it. And then whichever paragraph style you want to apply, double click on the style. Double click on the required style. So suppose I want to apply heading 2 to paragraph 1. I'll just double click on heading 2. See. When I double click, do not single click, double click. Again, I'll repeat the steps. What you have to do, you have to place your cursor anywhere inside the paragraph. Go to styles and formatting window because that is the thing we are learning. Method क्या है? Using the styles and formatting window. Select paragraph styles. Fine. The list of all available paragraph styles is going to display. Double click on the desired style. Fine. So if you want to apply heading 3, click on heading 3. If you want to apply on heading 4, click on heading 4. If you want to apply on, say, suppose header, click on that. Fine. You want to apply on heading 1, click on that. इस तरीके से आप पैराग्राफ स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज अब आपको पैराग्राफ स्टाइल हटाना है तो इसी कर्सर को आप यहीं रहने दीजिएगा और पैराग्राफ स्टाइल्स में एक ऑप्शन होगा डिफॉल्ट स्टाइल. जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट. जब आप डबल क्लिक करोगे डिफॉल्ट पर, द entire formatting that you had applied will be removed and the default formatting will be retained for that paragraph. So I hope this is clear. I'll again show it on paragraph 2. Click anywhere inside the paragraph, go to styles and formatting window, choose paragraph styles. From the list of paragraph styles, select, double click on any paragraph style to apply that paragraph style to your para. Fine. And restore करना है अगर original formatting को, double click on the option default. So this was how we could use styles and formatting window to format a paragraph. Now the same can be done for text within a paragraph. Text within a paragraph, suppose I want to format this line, virus, I want to format it. Fine. तो ये एक टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, इट इज अ वर्ड विद इन अ पैराग्राफ. सो इस पर अप्लाई होगा कैरेक्टर स्टाइल्स. ठीक है. सो कैरेक्टर स्टाइल्स आपको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप वुड बी, पैराग्राफ के केस में आपने कर्सर को पैराग्राफ में कहीं पर भी प्लेस कर दिया था. यहाँ आपको जिस कैरेक्टर स्टाइल, जिस भी टेक्स्ट को कैरेक्टर स्टाइल देना है, इट मे बी अ सिंगल कैरेक्टर, इट मे बी अ वर्ड, इट मे बी अ सेंटेंस, आपको पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा. सेलेक्ट इट एंटायरली. Now go to styles and formatting window and choose the second option, which is character styles. All the character styles are available in front of you. ठीक है. अब आप इसमें जो भी कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो क्या करोगे, आप इस पे डबल क्लिक कर दोगे. सपोज आई वांट एम्फेसिस, सपोज आई वांट एंड नोट कैरेक्टर, एंड नोट एंकर, I want line, I want this quotation one, I want strong emphasis. So what I'll do, the steps are: select a word within a paragraph or a line within a paragraph, go to styles and formatting window, choose the second option, which is character styles. When you choose character styles, list of all available character styles are shown. List is displayed before you. You have to double click on the desired character style that you want to be applied on the selected text. To restore to the original formatting, double click on default. The text is the formatting is restored to its original one. Fine. Now suppose I want to this thing apply character style to this full form of virus. So what I'll do, I'll select it, go to character styles and choose the option, say suppose strong emphasis. So when you click on strong emphasis, double click, ध्यान रखना double click करना है आपको और ये आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा.
ठीक है। सो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के लिए आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ के लिए कर्सर पैराग्राफ में प्लेस करके डिजायर्ड पैराग्राफ स्टाइल पर डबल क्लिक, कैरेक्टर हाइलाइटिंग के लिए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए कैरेक्टर्स को पहले सिलेक्ट कीजिए, वर्ड हो सकता है, कंप्लीट लाइन हो सकती है, सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स हो सकता है, सेलेक्ट करिए पहले और फिर डिजायर्ड कैरेक्टर स्टाइल पर डबल क्लिक कीजिए। डिजायर्ड कैरेक्टर स्टाइल आपको मिलेगा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में कैरेक्टर स्टाइल्स में, और डिजायर्ड पैराग्राफ स्टाइल आपको मिलेगा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के पैराग्राफ स्टाइल्स में। फाइन। अब सपोज मुझे यही वाला देखिए, अब क्या होता है, ये इसके लिए आपको बार बार स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग इस मेथड में आपको बार बार स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर जाना पड़ रहा है ना, डबल क्लिक करना पड़ रहा है डिजायर्ड स्टाइल को। ठीक, सपोज यू वांट कि पैराग्राफ 1 है मेरा यहाँ, ठीक है, इसको जो फॉर्मेटिंग मैंने दी वही मैं नीचे एक और पैराग्राफ को भी दूं, स्कैटर्ड वे में मुझे सेम फॉर्मेटिंग देनी है। सपोज आई हैव अनदर पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 3 over here, that is preparing computer against virus. This is paragraph 3. So what do I do over here? है ना, ये मेरा पैराग्राफ 3, मुझे सेम फॉर्मेटिंग पैराग्राफ 1 पर भी देनी है, सेम फॉर्मेटिंग पैराग्राफ 3 पर भी देनी है, और भी अगर पैराग्राफ्स होंगे उन पर देनी है। सिमिलरली मुझे सेम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स पर अप्लाई करनी है। तो इसके लिए मेरे पास एक और बहुत क्विकर मेथड है, दैट इज यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड, जो सेकंड मेथड है ऑफ अप्लाइंग स्टाइल्स टू योर डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स। सो पहले जरा सा यहाँ देख लेते हैं यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के स्टेप्स को हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 वाज यू हैव टू क्लिक द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, यू हैव टू ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। उसके मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए हैं, ठीक है। अब जो भी आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को जब आप राइटर में खोलोगे तो वो राइटर के अकॉर्डिंग 5 स्टाइल्स में देगा। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, कैल्क में खोलोगे तो पेज स्टाइल और सेल स्टाइल्स आएंगे, कैल्क के अकॉर्डिंग स्टाइल्स आएंगे। इम्प्रेस में खोलोगे तो ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल्स आएंगे जो इम्प्रेस के अकॉर्डिंग होंगी। सो जो भी ये लाइन जो आपने यहाँ लिखी है, ये क्या बता रही है कि स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो विल शो द टाइप ऑफ स्टाइल्स विच आर अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस component you are using, either it's writer or it may be calc or it may be impress. So जब हम बात कर रहे हैं, इस समय हम बात किसकी कर रहे हैं, राइटर की, तो उसमें हमारे पास 5 स्टाइल्स आ जाते हैं। 5 स्टाइल्स में अब आपको क्या करना है, इस विंडो को जब आप ये अपीयर होती है, आप इसको स्क्रीन पे किसी भी पोजीशन पर स्लाइड करके प्लेस कर सकते हो। अगर आपको उसको डॉक करना है, मैंने आपको डॉक करने का मेथड भी बता दिया, बिना कंट्रोल दबाए डॉक हो जाता है। आप ड्रैग कीजिए और उसको बिल्कुल राइट मोस्ट साइड जाकर जब आपके 4 बॉर्डर्स बन जाएं, रिलीज कर दीजिए माउस को, वो विंडो वहां पर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आप उसको हटा सकते हो, फिक्स फॉर द टाइम बिंग, अब वो एक विंडो का के अंदर एक डॉक हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना, मैंने बताया आपको कि आपने जो भी स्टाइल्स चूज करना है उस कैटेगरी को क्लिक कीजिए, उसके सारे स्टाइल्स आपके पास लिस्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के। कैरेक्टर स्टाइल्स को छोड़कर अगर आपको पेज पर या पैराग्राफ पर कोई भी स्टाइल लगाना है, फ्रेम भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आपको डबल क्लिक करना है पैराग्राफ के लिए, आप इंसर्शन पॉइंट को पैराग्राफ में प्लेस करेंगे और जिस भी स्टाइल को अप्लाई करना है उसको आप पैराग्राफ स्टाइल्स में जाकर डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर स्टाइल करना है तो कर्सर नहीं रखना उसके बीच में, है ना। आपको क्या करना है, उस पूरे कैरेक्टर को, वो वर्ड हो सकता है, वो सेंटेंस हो सकता है, पहले उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर कैरेक्टर स्टाइल्स पर जाइए और डिजायर्ड कैरेक्टर स्टाइल पर डबल क्लिक कर दीजिए। सो ये हो गया आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग की एक्सप्लेनेशन, आपके स्टडी मटेरियल से भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज फिल फॉर्मेट मोड। अब फिल फॉर्मेट मोड बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मैंने आपको अभी करके दिखाया कि बार बार आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाना पड़ेगा, फिल फॉर्मेट मोड जाकर और वहां पर सिंपल स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर जाकर डिजायर्ड स्टाइल पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। यू वांट टू अवॉइड दिस थिंग, फाइन। सो आपको क्या करना है कि क्विकली फॉर्मेट हो जाए मेरा, वो कंटिन्यूएशन में भी टेक्स्ट हो सकता है, वो स्कैटर्ड वे में भी टेक्स्ट हो सकता है, मुझे बार बार स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर ना जाना पड़े। ठीक, तो उसके लिए आपको यूज आएगा फिल फॉर्मेट मोड। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं।
Fill format mode is used to apply style to many different areas of your document quickly without having to go back to styles and formatting window and double click every time. Same style को, बात ध्यान रखिएगा, सेम स्टाइल को अगर आपको जगह जगह अप्लाई करना है, ठीक है ना, सेम स्टाइल देखो है ना. दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव टू फॉर्मेट मेनी पैराग्राफ्स. दे मे बी इन कंटिन्यूएशन, दे मे बी स्कैटर्ड. मेनी text, many text like simple characters, words, many sentences, they may be scattered. No worries. बार बार आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा. सेम स्टाइल सब पर अप्लाई करना है. जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि हेडिंग्स हमें सेम स्टाइल में रखनी है ना. तो बार बार आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर जाकर डबल क्लिक नहीं करना पड़ेगा. आप फिल फॉर्मेट मोड से उस काम को बहुत इजीली अचीव कर लोगे. सो करना क्या है, इस छोटे से 4 पॉइंट्स के अंदर आपके पास बहुत सारा मैटर है करने के लिए. ठीक है. फिल फॉर्मेट मोड आइकन मिलता कहाँ है? फिल फॉर्मेट मोड आइकन हमें मिलता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में. ठीक है. सारे स्टाइल्स अपीयर होने के बाद फिल फॉर्मेट मोड आइकन आपको मिलता है. ठीक है. फिर फिल फॉर्मेट मोड को यूज कैसे करते हैं वो स्टेप नंबर 1 to 3 में बताया गया है. ठीक. फिल फॉर्मेट मोड से बाहर कैसे आते हैं वो आपको स्टेप नंबर 4 में बताया गया है. और फिल फॉर्मेट अगर एक्टिव हो, ठीक है, और अगर आप डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी राइट क्लिक कर दो तो क्या होता है वो भी आपको पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है. ठीक है. तो इतनी सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर में. पहले प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं. ठीक. अब हम अपने पैराग्राफ में आ जाते हैं और मैं सारी इंफॉर्मेशन को डिफॉल्ट में सारी जो मेरी वो थी फॉर्मेटिंग जो मैंने फर्स्ट मेथड से करी थी उसको हटाकर अब मैं सेकंड मेथड पे बढ़ती हूँ. और सेकंड मेथड क्या है आपका, अभी आपने सीखा, मतलब इंट्रो मिला आपको उसका, यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड. ठीक. सेकंड मेथड पर अब हमारा एम्फोसिस रहेगा. फिल फॉर्मेट मोड, पहला क्वेश्चन कहाँ मिलता है? स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में. ये रहा फिल फॉर्मेट मोड. ठीक है. थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को हल्का सा मैग्नीफाई कर लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से इसका इम्पैक्ट नजर आए. ये रहा फिल फॉर्मेट मोड, ये आपके पास आइकन है. अब बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है. ठीक. पैराग्राफ पर अप्लाई करेंगे. पैराग्राफ 1 पर फिल फॉर्मेट मोड लगाएंगे और फिर पैराग्राफ 3 पर, 2 पर भी लगाएंगे, 3 पर भी लगाएंगे, सब पर लगाएंगे. जरा सा एक आप पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्ट करो पहले. अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना. ठीक. हेडिंग 2 को क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना. फिल फॉर्मेट मोड अप्लाई करने के लिए पहले आप डिजायर्ड कैटेगरी पे जाएंगे. यहाँ हमने पैराग्राफ स्टाइल्स कैटेगरी ली है. जो स्टाइल अप्लाई करना है उसको क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना. यानी ये स्टाइल आपने चूज कर लिया. अब जाकर यहाँ पर फिल फॉर्मेट मोड, ये जो आपका आइकन है या बटन है, इस पर क्लिक कीजिए एक बार. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ये बकेट है एक तरीके से. इसमें अब हेडिंग 2 स्टाइल फिल हो गया, ये फॉर्मेट फिल हो गया, ये बकेट आ गई. ठीक. अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ पर इस बकेट को सिंगल क्लिक करना है. होवर करिए पॉइंटर कहीं भी पैराग्राफ पर, सिंगल क्लिक कर दीजिए. देखिए हो गया ना. आपने देखा ये कैसे अप्लाई हुआ. अभी आपका फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है. देखो बकेट अभी भी है. पैराग्राफ 2 पर भी अप्लाई कर दीजिए. बार बार अब आपको क्या करना पड़ रहा है, क्या आपको फिल स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाकर क्या आपको वो करना पड़ रहा है, डबल क्लिक करना पड़ रहा है डिजायर्ड स्टाइल नेम को? नहीं करना पड़ रहा. आप सिर्फ करते क्या हो, आप कैटेगरी चूज करते हो स्टाइल्स की, स्टाइल पे सिंगल क्लिक करके फिल फॉर्मेट मोड पर क्लिक करते हो, बकेट फॉर्म आ जाता है. उस बकेट को आप किसी भी पैराग्राफ को जिसे आपको फॉर्मेट करना है, सेम स्टाइल्स रखने हैं ना आपको, यही स्टाइल हेडिंग 2 आपने 3 पैराग्राफ्स को देना है, तो आप बस इस बकेट को पैराग्राफ के ऊपर होवर कीजिए और क्लिक कर दीजिए. दिस स्टाइल विल be applied to your paragraph. ठीक है. Wasn't it very simple? Fine. अब इस फिल फॉर्मेट मोड से बाहर कैसे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए. ये बकेट अभी भी है, यानी यही हेडिंग 2 फॉर्मेट अभी मेरा एक्टिव है. ठीक. बाहर आने के 2 मेथड्स हैं. इसी बकेट पर क्लिक कर दीजिए. ठीक. अभी देखिए बकेट है आपके पास. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ मेरा पॉइंटर नॉर्मल हो गया.
दूसरा तरीका है आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दीजिए, फिल फॉर्मेट मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सही है, समझ में आ गया। तो कितनी जल्दी आपने सेम स्टाइल को तीनों पैराग्राफ्स पर अप्लाई किया। ठीक, अब एक जल्दी से मैं आपको एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करके भी दिखा देती हूँ। सो सपोज आई वांट टू हाईलाइट दिस प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस। मैं इस पर फिल फॉर्मेट मोड को अप्लाई करके इसको फॉर्मेट करना चाहती हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप कैरेक्टर स्टाइल्स पर जाइए, आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, वही आपका जो आपको स्टाइल अप्लाई करना है वो लीजिए, फिल फॉर्मेट मोड को क्लिक कीजिए, बकेट बन गई। अब सपोज मैं पूरी लाइन को नहीं, सिर्फ वायरसेस को मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है ना। तो मुझे इस बकेट के साथ माउस को ड्रैग कर देना है इस वर्ड के ऊपर। अब आप देखो ये हो गया वायरसेस, ठीक है ना। मुझे पैराग्राफ 1 को फॉर्मेट करना है, मैं यहां से ड्रैग कर दूंगी। अभी तो ये कैपिटल्स में लिखा हुआ है, नो इश्यूज। अभी मैं आपको दूसरे टेक्स्ट पर करके दिखाती हूँ इसको। सपोज मुझे यहाँ पे CD रोम्स और DVD रोम्स को करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपका स्टाइल अप्लाई हो गया। ठीक, सो सेम स्टाइल कैरेक्टर स्टाइल। मुझे डिफरेंस क्या होगा कि पैराग्राफ के केस में मैं सिर्फ पैराग्राफ को पर उस बकेट के को लाकर क्लिक करती थी। यहाँ मुझे इस जिस भी टेक्स्ट पर अप्लाई करना है मुझे उस पर ड्रैग करना पड़ेगा बेटा। इस बकेट को फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव होते ही मुझे उस टेक्स्ट पर ड्रैग करना पड़ेगा, जिससे कि जैसे सम ऑफ द कॉमन साइंस ऑफ अ वायरस अटैकर, ये मैंने ड्रैग कर दिया। तो ये मेरा कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई हो गया यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड आइकन। अब आप ध्यान रखो, फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है, ठीक। बाहर कैसे आते हैं, मैंने आपको 2 मेथड्स बताए। ईदर यू क्लिक ऑन दिस आइकन अगेन, इट विल गो अवे, ठीक, या आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दो, इट इज गोइंग टू गो अवे। लेकिन अभी मैं इसे हटा नहीं रही क्योंकि मुझे आपको एक चीज और बतानी है। अगर फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है और आप कीबोर्ड से माउस का राइट क्लिक कर देते हो, तो बेटा आपका लास्ट फिल फॉर्मेट मोड जो अप्लाई हुआ है वो अंडू हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट लास्ट जो आपने इसमें अप्लाई किया। जैसे अब आप देखो मैंने इसमें क्या क्या अप्लाई किया कैरेक्टर स्टाइल में, मैंने 4 टाइम्स इसको वो किया है बेटा यूज, है ना। मैंने इसको वायरस वर्ड पे यूज किया, ठीक। मैंने इसको CD रोम्स और DVD रोम्स पर अप्लाई किया। मैंने इसको यहाँ पर CD और DVD पर अप्लाई किया और इस लाइन पर अप्लाई किया। सो मेरा लास्ट फिल फॉर्मेट मोड किस पर लगा है, इस लाइन पर। सम ऑफ द कॉमन साइंस ऑफ अ वायरस अटैक आर। नाउ सी व्हाट विल हैपन, आई विल राइट क्लिक फ्रॉम माय सिस्टम। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, आप देख पा रहे हो फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव था, मैंने राइट क्लिक किया, इट हैज अनडन द लास्ट फिल फॉर्मेट मोड। अब मैं फिर से राइट क्लिक करती हूँ, मैंने C को फॉर्मेट किया था बेटा सेपरेटली, अगर आप ध्यान से देखना मैंने CD और DVD में D और DVD पहले कर दिया था, C छूट गया था, मैंने दोबारा लगाया था। अब मैं फिर से राइट क्लिक करती हूँ, ये मेरा अंडू हो गया। सो जैसे जैसे आप राइट क्लिक करते चले जाओगे तो लास्ट फिल फॉर्मेट मोड जो आपने लगाया था वो हट जाएगा, वो अंडू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस द राइट माउस क्लिक ऑफ in a situation where the fill format mode is active। अब ये एक्टिव है इस समय, ठीक है ना। तो मैं अब कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करती हूँ, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप देखो बकेट चली गई, नॉर्मल पॉइंटर आ गया। सो दिस वाज अबाउट the second method. Let's quickly read it from your study material. Open the styles and formatting window, select the styles you wish to apply। पहले एक क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लिया आपने स्टाइल को जो आपको अप्लाई करना है, फिल फॉर्मेट मोड आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको पैराग्राफ पर अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको पेज पर या फ्रेम पर, तो आप पैराग्राफ उस पर माउस पॉइंटर को होवर करोगे। होवर करते टाइम वो बकेट फॉर्म आता रहेगा, ठीक है, जैसे फिल फॉर्मेट दिखता है, ठीक। होवर करते के साथ आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करना है तो आप पहले स्टाइल सिलेक्ट करो, कैरेक्टर स्टाइल्स में से फिल फॉर्मेट मोड को आइकन पर क्लिक करो, फिर जो भी आपका कैरेक्टर है या वर्ड्स हैं या सेंटेंस है जिस पर उसे अप्लाई करना है,
आप माउस को उस पर ड्रैग कर दीजिए, फिल फॉर्मेट मोड बकेट के साथ उस पर ड्रैग कर दीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, फिल फॉर्मेट मोड से बाहर आने के लिए, क्विट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? यू आइदर क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड आइकन अगेन, सो इट्स लाइक अ टॉगल, you click on it once, it's activated, you click on it next time, it is deactivated, or you press the escape key. Fine. Important thing, when this mode is active, जब fill format mode active है, and if you right click anywhere in your document, what it will do? It will undo the last fill format action. So be careful, accidentally right click ना हो जाए, क्योंकि right click होते ही आपका last fill format mode जो आपने अप्लाई किया था, जिस भी कंपोनेंट पे अप्लाई किया था, वो अनडू हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट applying styles in OpenOffice Writer using the two methods, styles and formatting window and fill format mode. I hope आपको बेटा ये clear हुआ होगा, and do try it out practically, and I'll eagerly wait for your valuable comments, your valuable feedback. Do like the video in case you found it useful, and do not forget to share it, to subscribe to my channel just in case you haven't done it as yet. I'll be back with part 3 soon. Part 3 में हम सीखेंगे अपने स्टाइल्स कैसे बनाते हैं और स्टाइल्स को अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, सो पार्ट 3 के साथ सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। I'll be back with it very soon. So till we meet again, children, keep learning, stay happy. God bless you, and as I always say in the end, happy learning.